राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद। कांग्रेस सदन के नेता अधीर रंजन जी, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि सदन की गर्मियां बने रखें और माननीय अधीर रंजन जी जो सदन कांग्रेस के नेता हैं उनकी बात को सुने शालीनता के साथ। Sir, thank you, sir. Sir, since the Constitution came into force in consonance with the tradition and protocols of Indian parliamentary democracy, each year before the commencement of the session, Mahamahim Rashtrapati ji used to deliver आप जल्दी रख दें। the address to both the houses of parliament assembled together. So it heralds the first session of this new year 2022. It is incumbent upon the President under Article 87 of our Constitution to address the session, and we all maintain it as a solemn occasion, since the first president of our country, Dr. Rajendra Prasad ji, addressed the same in the year 1950, 31st January. So the president had spelled out the programs, the policies, the accomplishment of this government in the previous years, along with the policies, impending policies, programs, so that we can have a bird's eye view in regard to the government's programs and policies. एक मिनट माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। कांग्रेस दल के नेता भाषण दे रहे हैं, प्लीज अब बोलिए। Sir, already we have gone through the address. It consists of 82 paragraphs. I will certainly try without any qualm and compunction to find out the objectives and intentions of this government and the lacunas, deficiencies, shortcomings, which are also visible in this address. So that is why I rise to dwell on the presidential address. Our Honorable Prime Minister is also coming to attend this house. It's a great opportunity for all of us. So now the question is that how do you define the intent and objects of this government which has been enshrined in this address? It has been stated that my government is celebrating the sacred occasions of 400 Prakash Parv of Guru Tegh Bahadur Ji, the 150th birth anniversary of Sri Aurobindo, the 150th birth anniversary of B.O. Chidambaram Pillai, and the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose with grandeur. From this year onward, the government has started the Republic Day celebrations from January 23rd, the birth anniversary of Netaji. Now the question is, whether should we confine ourselves to the celebration of sacred occasions and anniversaries in memory of those grand souls, or should we inculcate the ideas preached by them and to imbibe the teachings of those great personalities to build the nation and to build the future of our country? That is the
moot point, so that we can have a real introspection and to peep into these core ideas of those great souls of our country, such as Guru Tegh Bahadur Ji's Prakash Parv, 400 Prakash Parv of Guru Tegh Bahadur Ji, who was depicted as a Hind Chaddar, शीश दिया पर सीना उछली, धर्म है सका जिन किया, शीश दिया पर सिरार न दिया. एक शहीद, एक वीर, who has sacrificed his life but not sacrificed his ideal. That is the motto of Guru Tegh Bahadur Ji's life. Whether we are emulating that motto or not, who had defended the Hinduism but never opposed to the idea of Islamism or Muslims. We should not equate all the Muslims of our country with Aurangzeb, as much as we should not equate all the Hindus of our country with Jai Chand. Sometimes we are confusing the mind of the common people by bogus depictions of the history. History is the remembrance of the past. So we cannot hide the truth of our history, even if we strive hard to distort it. That should be kept in mind. Mr. Chidambaram Pillai, VOC Chidambaram Pillai, I quote him, that quality relationships are built on principle, especially the principle of trust. We should follow his idea. The great saint Sri Rishi Aravinda, who said, I quote, all problems of the existence are the problems of harmony. Ever since the dawn of history, man has been actuated by the persistent dream of triple harmony. Harmony within man, social harmony between man, and the harmony between the man and the world around him. Whether we are persuading that idea of harmony or not, that needs to be considered. According to Bhagwan Birsa Munda, उनका कहना था, यदि हमें देश की वास्तविक विकास करना है तो हमें सभी धर्म और जाति के लोगों को साथ लेकर चलना होगा. Swami Vivekananda, who taught us, each must assimilate the spirit of the others, yet preserve his own individuality and to grow according to the law of growth. The basic communal harmony is the basic principle of peaceful existence of a country as diverse as India. Whether we are persuading those great ideas or not, that needs to be considered. Here, you are talking about Subhash Chandra Bose ji. Yes, we must appreciate from the core of my heart. The entire country always pay their regards, their homage, their tribute to the great soul of our country. The tragic hero of the world, whom date of birth is known, but the date of expiry is riddled with controversies. Yet,
we all celebrate his birth anniversary. He exhorted to the people of our country that with the advent of the Mohammedans, a new synthesis was gradually worked out. Though they did not accept the religion of the Hindus, they made India their home and shared in the common social life of the people, their joys and their sorrows. Through mutual cooperation, a new art and a new culture was evolved. Whether heaven would have fallen upon us if we follow the guidance given to us. Here, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हम जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन जर्मनी से सिंगापुर तक, मतलब यूरोप से एशिया तक आने के लिए जो पनडुब्बी की इस्तेमाल किया गया था, कल्पना भी नहीं किया जा सकता। 90 दिन की सफर थी और समुद्र के नीचे से उनके साथी थे आबिद हसन। हम उनको याद कभी करते हैं। धीलो साइगल, सनवाज खान, इंडियन नेशनल आर्मी के वो जहाबाज सिपाहियों ने, जिन्होंने दिल्ली चलो नारा से हिंदुस्तान की ओर आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान की आजादी की एक अहम भूमिका पालन किया था, उन सबको भी याद करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी याद करना चाहिए, उसके साथ साथ ये भी याद करना चाहिए कि नेताजी 1942 अगस्त में उनकी रेडियो मैसेज में क्या कहा था। 1942 में रेडियो एड्रेस में उन्होंने ये कहा था कि आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर जिन्ना, मिस्टर सावरकर, that all those leaders who still think of a compromise with the British to realize once for all that in the world of tomorrow there will be no British Empire. All those individuals, groups or parties who now participate in the fight for freedom will have an honored place in the India of tomorrow. The supporters of British imperialism will naturally become non-entities in a free India. वो महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को महात्मा गांधी जी कहते थे प्रिंस ऑफ द पैट्रियट। उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा के समय यह कहा था कि इन द होली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बापू जी, आई एम सीकिंग योर ब्लेसिंग। यही हमारा हिंदुस्तान की परिचय है। आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को सम्मान करते समय होलोग्राम जरूर लगाते हैं, लेकिन वो होलोग्राम अमर जवान ज्योति हटाने की बदले क्यों अमर जवान ज्योति और वार मेमोरियल में जो ज्योति जलाए गए जाते थे पहले, उस समय यह तय हुआ था कि दोनों ज्योति अगर जले तो कोई हर्ज नहीं, साइमल्टेनियसली दो ज्योति जल सकते। लेकिन आप नेताजी की उस जगह अब होलोग्राम लगा के क्या संदेश देना चाहते हैं? वो भी तो हमारे देश के लिए शहीद हुआ था। 1971 की वो जो लड़ाई हुई थी, जिस लड़ाई के चलते बांग्लादेश आजाद हुई थी और जिस लड़ाई के चलते पाकिस्तान की कोमर तोड़ दिया गया था, उसका नाम सब जानते हैं, हमारा दिवंगत आत्मा है वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। आप चाहते हैं कि इंदिरा गांधी जी की नामो निशान ना रहे, इसके लिए उसको यहां से हटाया जाए। मैं ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके की किसी छवि को अब धूमिल, किसी छवि को मिटाना कभी संभव नहीं होगा, ये मान के चलना सही होगा। अगर कागज में कोई नाम लिखा होते हैं तो मिट जाते हैं, पत्थर में अगर कोई नाम लिखा होते वो भी खा जाते हैं, करोड़ हो जाते हैं, लेकिन दिल में अगर कोई नाम रह जाते वो किसी ने कभी भी उसको मिटा नहीं जा सकते। तो इंदिरा जी हिंदुस्तान के आम लोगों के दिल में बसे हुए एक
महान नेत्री भी थे, अभी भी है। हो सकता कोई उनके खिलाफ कोई आलोचना जरूर हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी जो कर्मवीरता, उनकी जो दान हमारा देश के लिए, वो हम भूल जाएं, उनकी कुर्बानी को हम भूल जाएं, उनके परिवार को कुर्बानी को भूल जाएं, ये कभी नहीं हो सकता। आज पाकिस्तान के खिलाफ हम बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कमजोर अगर किसी ने किए होंगे, उनकी तो नाम इंदिरा गांधी जी है। इतिहास ये बताते हैं 93,000 पाकिस्तानी फौजों को बंदी बना के शिमला अकॉर्ड करके आज पाकिस्तान को उन्होंने हिंदुस्तान के सामने घुटने टेकने को मजबूर किया था। ये तो इतिहास है, लेकिन आप लोग नहीं चाहते कि उसको नाम जिक्र किया जाए, इसलिए चलो उनको हटाया जाए, उनके ज्योति को हटाया जाए। और इसके लिए इस समय देखिए, आपको सीख देने के लिए नेताजी की पुत्री उन्होंने क्या कही है। नेताजी की पुत्री ये कही रही है, माई फादर ड्रीम्ड ऑफ एन इंडिया where all religions coexist peacefully. This statue should not be the only tribute to Netaji. We must also honor his values. कौन कहती है? Anita Bose Pap said hours after the announcement was made by Prime Minister Modi ji. मैं और एक बात यहाँ रखना चाहते हैं, हमारा प्रधानमंत्री जी को देखते हुए मुझे लगता कि और एक बात प्रधानमंत्री जी को सामने रखना चाहिए। वो यह है कि when Netaji was planning to liberate the northeast of the country through INA, it was V.D. Savarkar who offered full military cooperation to the British masters. While addressing 23rd session of Hindu Mahasabha at Bhagalpur in the year 1941, he said, "The war which has now reached our shores directly constitutes at once a danger and an opportunity, which both render it imperative that the militarization movement must be intensified, and every branch of the Hindu Mahasabha in every town and village must actively engage itself in rousing the Hindu people to join the army, navy, the aerial forces, and the different warcraft manufacturing." इसके लिए मदद ब्रिटिश के लिए। ये कहां है? सावरकर जी की ये भाषण में है। मैं आपको सुविधा के लिए एक मिनट आपके सुविधा के लिए बताते हैं। V.D. सावरकर की ये भाषण समग्र सावरकर वंग माया हिंदू राष्ट्र दर्शन वॉल्यूम 6 महाराष्ट्र प्रांतिक हिंदू सभा पूना 1963 पेज 460 to 61 आप देख लीजिए। तो ये है बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस bluntly accused the Hindu Mahasabha of being more interested in the downfall of the Congress than the independence of India. In March 1940 editorial, he wrote that the Hindu Mahasabha had colluded with the British in the Calcutta municipal election at the expense of Indian parties. So, मैं ये इंट्रोस्पेक्शन के लिए कहना है, ऐसा कोई बात नहीं। हम चाहते हैं कि इतिहास को सामने रख के हम सब इससे कुछ सीख ले। सिर्फ एनिवर्सरी और सिर्फ सेलिब्रेशन में काम नहीं बनने वाला है। असलियत ढूंढना है, गहन अध्ययन करना है और अच्छा सोच निकलते हुए हमें आगे चलना है। देखिए ये एक नया जमाना आ गया। ये न्यू इरा ऑफ टॉक्सिक कॉकटेल ऑफ हिंदुत्व विथ पॉपुलिज्म, ए न्यू alchemy achieved by Prime Minister Modi ji, who is viewed by his supporters, rather I may say by his psychopaths। इसलिए कहता है मोदी साहब कि 3 दिन से चर्चा चल रहे हैं मोदी 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 मोदी। जितने बार यहाँ उच्चारित हुए हैं, उल्लेख हुए हैं, अगर सही ढंग से राम 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 पुकारते तो भगवान राम सीधा पार्लियामेंट में आ जाते। हर बात में सिर्फ मोदी और मोदी मोदी और मोदी। पता नहीं ये मोदी जी के कहने क्यों ऐसा होर लगे हैं। अब ये लगता है
कि मोदी जी करने से मोदी जी ज्यादा खुश होंगे, किसी को कुछ मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन बात ऐसा नहीं है। आप असलियत में आइए, मोदी जी कहते हुए जिस समय बर्बाद किए हैं, उस समय अगर चर्चा में शामिल होते बहुत सारे आप खुद बोल सकते थे। ये आपका सपोर्टर्स मोदी जी सोचते हैं आप एक प्रोविडेंशियल है। You have added new adjectives with democracy, ethnic democracy and electoral democracy, to transform India into a Hindu Raj. BJP's populist politics promises made to the poor during election campaign did not translate into policies. That is why मेरा लीडर राहुल गांधी जी आप लोगों को तीखी आलोचना करते हुए हिंदुस्तान को दो हिस्से में आप लोग बांटते हैं, इसका आपको जिक्र किए हैं। आपको खलबली मच चुके हैं, बात नहीं समझते लेकिन खलबली मच जाते हैं, गाली गालोच देने लगते हैं। लेकिन हिंदुस्तान सही मायनों में दो हिस्से में बांट जाते हैं, गरीब अमीर और गरीबी के भीतर बढ़ जाते हैं। 80 और 20% में आप हिंदुस्तान बांटना चाहते तो है। देखिए, नफरत ये बुरा चीज होते हैं, नहीं पालना इसे। दिल की खालिश जो है सारे निकाल दो इससे, ना इसका ना उसका ना तेरा ना मेरा। ये वतन सबका है, ये वतन सबका है, बचा लो इसे, रक्षा कर लो इसे, यही हमारा राय है। 2019 की जो चुनाव हुई थी, 2019 इलेक्शन कैंपेन मार्क्स ए ट्रांजिशन इन India towards electoral authoritarianism. Electoral authoritarianism, precisely because electoral competition was no longer a level playing field, not only due to the ruling party's financial resources, but also of the role of the media and the bias of the institution in charge of election process. ये मैं नहीं, ऑथर जेफर लॉट की ये राय है। Populist, according to Jen Warner Muller, I quote करते हैं, I quote, populists are against pluralisms because they claim that they represent all the people, making political opposition not only redundant but also illegitimate and even anti-national. The thesis of Edward Sills adds that the populist, since he is the people, stands above institutions. His legitimacy prevails over other power centers even when they embody legality, because legality cannot compete with his legitimacy. In the book How Democracy Died, Stephen Levitsky and Daniel Giblat considered one of the indicators of authoritarian behavior is that rulers endorse violence by their supporters by refusing to unambiguously condemn it and punish it. ये मोदी जी आप करते हैं, कैसे किए? जब गोडसे की पूजा होती थी, अभी भी करते हैं कुछ लोग, जो महात्मा गांधी जी को हत्या किया था, और उसके उस विषय पे लेके जब हम सदन में आपके मंत्री के, आपके सदस्य के खिलाफ यह बात रखे थे, आप एक बयान दिया था कि मैं क्षमा नहीं कर सकूंगा, बाद में कुछ नहीं किया। आज ये हिंदुस्तान में जिस तरीके से खून खराबा दंगा फसाद हो रहे हैं, आप अनएम्बिगुअसली खुली जुबान से आपको इस विषय पे कुछ रखना चाहिए। हमें आपको बोलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि आप सदन में आते नहीं। मैं आपको याद दिलाते हैं कि मोदी जी, आप ऑन एन एवरेज यू हैव स्पोकन 3.6 times a year in parliament, 22 times in 6 years, not more than H.D. Devegowda, who was PM for 2 years. In contrast, Atal Bihari Vajpayee spoke 77 times in 6 years when he was Prime Minister, and Manmohan Singh ji, who was called Mohan Singh by Modi ji in 2012, spoke 48 times in parliament during his 10 years in office. तो मौन कौन है? मनमोहन सिंह मौन नहीं है। मोदी जी बाहर बात करता है, अंदर बात नहीं करता। आ जाए, हम लोग धन्य हो गए।
मोदी जी क्या करते हैं? इन ऑर्डर टू सर्कमवेंट पार्लियामेंट, मोदी जी हैज ऑफन फॉलोड द ऑर्डिनेंस रूट। हमारा समय भी ऑर्डिनेंस हुए थे, लेकिन वो ऑर्डिनेंस हमारा समय जो हुआ था उससे आप कई गुना ज्यादा निकलने लगे। फिर भी आप मेजोरिटी में है, बहुमत आपका है, फिर भी आप ऑर्डिनेंस की बदौलत उसको हथियार बना के आप सदन चलाना चाहते हैं। इसमें आपका इरादा क्या है पता चलते। मैं एक बात मोदी जी आपसे जानना चाहते हैं, आपका जवाब में जरूर ये बात जिक्र करेंगे, मुझे जवाब दीजिएगा अगर हो सके। During a celebration of 75th year of our birth as an independent democratic nation, PM was lamenting, आपने ये कहते थे कि ज्यादा अधिकार मांगना और कर्तव्य पालन ना करना ये देश को कमजोर करते हैं। इसका मैं व्याख्यान चाहते हैं। Too much preoccupation with rights and too little emphasis on duties has weakened India। क्योंकि आपको ये बात सुनकर 1936 का रशियन के जो कॉन्स्टिट्यूशन याद आते हैं। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1936 में यह फैसला हुआ था कि आम लोग दे शुड बी असाइन्ड टू द मदरलैंड, दे कैनॉट एंजॉय द सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, बिकॉज इट इज सोवियत यूनियन। लेकिन हमारा देश में हम तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा संविधान में हम लोग डाले हैं। ये संविधान हम लोग, ये देश के लोग बनाए हैं, देश के बड़े बड़े नेता ने ये संविधान बनाए हैं। ये संविधान की मूल भावना को हम बयान करना चाहते हैं। लेट मी सीज द अपॉर्चुनिटी ऑफ साइटिंग a few immortal words of our constitution. We, the people of India, having solemnly हम लोग क्या किया? रिकॉग्नाइज किया। क्या रिकॉग्नाइज किया? टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to ensure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. In our Constituent Assembly, this 26 November 1949, do hereby adopt and enact and give ourselves this constitution. इसका मतलब यह है कि यस, हम लोग कभी ये नहीं कहा, हम लोग कभी ये नहीं कहा कि we the Hindus of India having solemnly resolved. हम लोग ये नहीं कहा we the Muslims of India having solemnly resolved. हम लोग क्या कहा? We the people of India having solemnly resolved. ये we को आप हटाना नहीं, ये मसला आपके नहीं, मुझको नहीं, ये हम सबका है। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। जरा धर्म की चश्मा उतार कर देखो यारो, हिंदुस्तान खुद खतरे में है। मैं इसको जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका आरएसएस always disagrees with the constitution and its insistence on accountable governance and empowered citizenry. Even Vajpayee also constituted a high profile commission to review the working of the constitution. मुझे लगता है कि एक समय जब आता है, कभी आपको यह लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनना चाहिए, कभी आपको लगता है कि मुसलमान मुक्त भारत बनना चाहिए, अभी क्या ये लगेगा कि अधिकार मुक्त भारत बनना चाहिए? ये मेरा डर है, क्योंकि ये डर आपने पैदा करते हैं जब आप कहते हैं कि टू मच प्रीऑक्यूपेशन विथ राइट्स एंड टू लिटिल एम्फेसिस ऑन ड्यूटीज हैज वीकेंड इंडिया। इंडिया को आपको लगता है कि इंडिया कमजोर होते जा रहे हैं?
आपको अगर लगे कि इंडिया कमजोर होते जा रहे हैं, आप बताइए, हम सब आपके साथ है। ये हिंदुस्तान को शक्तिशाली करने के लिए सब आपको मदद करेंगे, कंधे में कंधे मिलाकर आपके साथ लड़ेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी भी कह के गया कि हम सबको देश की रक्षा करने के लिए यहाँ मौजूद है। आपने क्या किया? अब तक ये नहीं बताते हैं सदन में आके, जे चाइना हमारा हिंदुस्तान की कितने जमीन को हड़प करके रखा। क्यों नहीं? ये हमें जानने के अधिकार नहीं है, ये हमें जानने के अधिकार नहीं है। हम बार बार सदन में गुहार लगाते हैं। आप जाइए लद्दाख में वाई जंक्शन, ये वाई जंक्शन कैप्चर करके रखा है ये चाइनीज फौजों ने। ये वाई जंक्शन की क्या है जानते हैं? Which is 18 kilometer inside Indian territory. That means they are denying the access of Indian army on 900 square kilometer of area. Could you imagine? ये Y junction is also the main route to approach patrolling points. Do you know that 18 friction points still exist? 18 friction point है जहां हमें घुसने नहीं देता चीनी फौजों ने। ये क्या है? ये जंक्शन can directly influence Indian movement on DSDBO road. If this road cut, all its forces in Devshang and Daulat Beg Oldi airbase can be cut off. इसलिए मैं कहता कि कोई मिस्टेक अगर कभी हुआ था उसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि देश को रक्षा करना है, देश को बचाना है। मैं बड़ी दावे के साथ कह सकता हूं कि आज आप निर्णय लेने की जिम्मेवारी हमारे फौजों को छोड़ दीजिए। ये पॉलिटिकल बात इसमें मत रखिए, पॉलिटिकल डिसीजन ना लीजिए। हमारे फौजों को जिम्मेवारी छोड़ दीजिए, क्योंकि जब गलवान में घटना घटती है, हमारा 20 जवान शहीद हो जाते हैं, उस दो दिन के बाद आप अगर कहे प्रधानमंत्री होने के नाते कि गलवान में कोई नहीं घुसे, किसी ने कहीं कब्जा नहीं किया, तो सबसे ज्यादा सुविधा किसको होता है? चीनी सरकार को। तुरंत तो चले जाते हैं, जाके कहते हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री खुद कहे हैं कि गलवान में चीनी फौज अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तानी फौज अतिक्रमण करके चाइनीज एरिया में घुसा। इट इज इंप्लाइड। तो हमें कमजोर होना पड़ा। और यह तो अब देखिए, हमारे रक्षा मंत्री लड़खड़ाते हुए कह दिया कि हां अतिक्रमण हुए हैं। जब प्रधानमंत्री जी का बयान आ गया, डिफेंस मिनिस्टर की वेबसाइट से उनका बयान हट गया। क्या होते हैं? चलिए उत्तराखंड में बड़ाहाटी में क्या हुआ? हमारे सरहद पे आके चीनी फौजों ने हमला कर डाला। चले जाइए सिक्किम में, चले जाइए अरुणाचल में। अरुणाचल का मैं नहीं, आपके पार्टी के एमपी तापिर गाव वो खुद कहते हैं कि अरुणाचल में चीनी फौजों ने हमारे सीमा पे घुसकर हमारे बच्चे को उठा के ले गए। मैं नहीं कहते। तापिर गाव की ये ट्वीट आपको पढ़ा के सुनाता हूं। चाइनीज PLA has abducted Sri Miram Taron, 17 years of Jido village yesterday 18 January 2022 from inside Indian territory, Lungtajor area. China built 3 to 4 kilometer roads inside India in 2018 under Siangla area, Bising village of Upper Siang district, Arunachal Pradesh. मैं नहीं कहते, आपके पार्टी के MP वहां के अध्यक्ष तापिर गाव खुद कहते। आप इसको ना नहीं कर सकते? हमारे किरण रिजिजू भी है वहां के मंत्री, हमारा कानून मंत्री, उनका भी हिम्मत नहीं है इसको ना करे, क्योंकि जो हुआ है वो हुआ है। लेकिन ये कैसे हो रहे हैं, इसको रोका कैसे जाएगा? इस विषय पे हम क्या सोचते हैं, ये हम सबको प्रधानमंत्री जब जानकारी दिए चीनी अतिक्रमण के बारे में, हमें आप थोड़ा अवगत कराइए, क्योंकि हम लोग सब बेचैन हैं। हाँ कहिए। के बयान दिया है पब्लिकली और स्टेटमेंट में दिया है कि वो बॉर्डर एरिया में जहाँ डिफाइन नहीं है, सबको मालूम है, वो वहाँ गए थे हंटिंग के लिए, और वहाँ जाते समय कि उसको नहीं मालूम है बॉर्डर कहाँ है, क्योंकि डिमार्केटेड लाइन नहीं है, तो वहाँ उनको पकड़ा है। वो खुद ने कहा है चाइना इंडियन टेरिटरी में घुस के पकड़ के ले गया, उन्होंने खंडन किया, ऐसा नहीं है। तो मैं आदित्य जी को अनुरोध करता हूँ कि आप
मिस कोट मत करो, और ये सदन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बात को यहाँ रिकॉर्ड होता है, इसलिए आर्मी ने भी इसका क्लैरिफाई दे दिया है, इसलिए मिस कोट ना करें। आप मतलब मेरा जो बात है ना, इस बात को घुमा फिरा के कहने की क्यों जरूरत है, सब जानते हैं, क्योंकि ये सारे दुनिया में ये सारे चर्चा हो रहे हैं कि चीन हमारा अंदर घुस रहे हैं, हमारे अंदर घुस के बिल्डिंग बना रहे हैं, पैंगोंग त्सो में ब्रिज बना रहे हैं। ये पेंटागन खुद कहते हैं, मैं क्या हूं, मैं एक छोटे मोटे आदमी हूं। सब कहते हैं आप इंडियन आर्मी को आप विश्वास नहीं करते? नहीं, इंडियन आप आर्मी, विदेशी सोर्स को विश्वास करते हैं क्या? आप कह दीजिए कि आप इंडियन गलत है। आर्मी का सोर्स को कोट करो। आप कह दीजिए कि गलत है, आप कह दीजिए कि हमारे फौज चीनी टेरिटोरी में घुस गए थे, इसके लिए चीनी फौजों ने उसको मार डाला, कह दीजिए कहीं हर्जा क्या है। देखिए, ये मैं आप लोगों को कोई इल्जाम नहीं लगाते, ये हम सबका चिंता है, ये हमारा चिंता इसलिए है क्योंकि धीरे धीरे हमारे साथ, और ये लीडर ऑफ कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी है लोकसभा में, हर चीज सोच समझ के कहना चाहिए, क्योंकि ये सीरियस भी है, बहुत सेंसिटिव भी है। हर स्टेटमेंट आप जो इस सदन में कहता है सोच समझ करके, और भारत सरकार का आर्मी का सोर्स को कंफर्म करके तब आप ये कहना चाहिए। अच्छा, चाइना पे चर्चा करना कि गलत होगा? सर मैं ये कह रहा हूं कि डोकलाम में हमारा फौज आपकी नेतृत्व में डांट से रुका था, लेकिन बात यह है डोकलाम से हम सीख नहीं किया। डोकलाम को हम नजरअंदाज करते हुए हम एक सेल्फ कॉम्प्लाजेंस, आत्मतुष्टि की भावना में हम लोग डूबे हुए थे। हम सोचा, शायद सोचे होंगे कि जी जिनपिंग के साथ हमारा और कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि दोस्ती बढ़ते जा रहे हैं। चीनी सरकार की ये जो इविल इंटेंशन थी, शायद आपको पता नहीं होगी, तो हम अगर इसको पॉइंट आउट करते, गलती किया है। चीन हमें घेरने का कोशिश तो कर रहे हैं, और हम अंदर इंटरनली हमको स्टेबिलाइज होना चाहिए। देखिए, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी चाहिए, सोशल स्टेबिलिटी चाहिए। हमारा फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को जरूर ये कहना चाहते हैं। आप बांग्लादेश में जाने का बात तैयार किया था, लेकिन बांग्लादेश की आम जनता आपके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए वहां की सरकार ने ना कर दिए। ये हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं होती है, ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं। आप जाइए मालदीव में, वहां इंडिया आउट कैंपेन चल रहे हैं, चाइनीज इंस्टिगेशन की दौलत। चाइना वहां उकसाते हैं, इंडिया आउट कैंपेन चलते हैं। इसका मतलब हमारे पीछे चीन, पाकिस्तान सब मिले हुए हमको कमजोर करने का कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की अंदर की हालत ठीक कर लीजिए आप, क्योंकि मैं इसलिए ये कह रहा हूं, हरिद्वार की जो घटना घटी थी हमारे हिंदू सम्मेलन की, इसके बाद प्रधानमंत्री जी को और हिंदुस्तान की महामहिम राष्ट्रपति जी को एक चिट्ठी लिखा था। किसने? मैं नहीं। Some of the signed dignitaries include 4 former Chief of Naval Staff: Admiral Lakshmi Narayan Ramdas, Admiral Vishnu Bhagwat, Prakash A.K. Dhawan and Raman Prem Suthan। क्या लिखा था ये कि we cannot allow such incitement to violence together with public expression of hate, which not only constitute serious breaches of internal security, but which could also tear apart the social fabric of our nation. One speaker made call to the army and police to pick up weapons and participate in the cleanliness drive, that means Safai Abhijan. This amounts to asking the army to participate in genocide on our own citizen, and therefore it is condemnable and unacceptable. We are seriously perturbed by the content of the speeches made during 3 to 4 days religious conflict called a Dharam Sangsad that Hindu sadhus and other leaders held at Haridwar between 17 to 19 December 2021. There were repeated calls for establishing a Hindu Rashtra and, if required,
picking up weapons and killing up India's Muslims in the name of protecting Hinduism. सर ये मैं प्रधानमंत्री जी की निगाहों में रखना चाहते हैं, शायद सब ने उनको सच्चा नहीं भी कह सकते, इसलिए मैं सोचा कि प्रधानमंत्री जी को आज मौका मिलते ही ये सारे बात हाँ सर करते हैं। सर मैं अभी इस बात पे आते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की नौजवान बेरोजगार है, 53 मिलियन नौजवान बेरोजगार पड़े हैं, सीएमआई रिपोर्ट कहते हैं। मोदी जी कहते थे चुनाव के पहले सालाना 2 करोड़ नौकरी, अभी कह रहे हैं 60 लाख, कम कर दिया, ठीक है, अच्छा किया। लेकिन जो बेरोजगार पड़े हुए हैं वो क्या करेगा? वो अभी क्या कहते हैं जानते हैं? मोदी जी आपको अच्छा दिन की सपना हम देख लिया है और ये अच्छा दिन का सपना नहीं देखना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं? मोदी जी आप हमारा बुरा दिन लाइए, मोदी जी लौटा दे हमारे बीते बुरे दिन। हम कहते हैं बेकार नौजवान, बेरोजगार नौजवान कहता है मोदी जी मुझे लौटा दे बीते बुरे दिन। अब किधर जाओगे? अब महंगाई को देखिए, महंगाई को देखिए। अब चौंक जाओगे प्रधानमंत्री जी, ये क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट 2014 साल में 1 लीटर पेट्रोल की 68 रुपया दाम था, आज 110 पर लीटर। कितना फीसद बढ़ोतरी हुई है? 62%। डीजल 57 पर लीटर थे, आज बढ़ के चले गए 95 पर लीटर, 67% इजाफा। एलपीजी सिलेंडर 414 पर सिलेंडर, अभी 900 पर सिलेंडर, 117 गुण इजाफा। टमाटो 18 2014 में, अभी 84% इजाफा। कैप्सिकम 33 रुपया थी, अभी 72 रुपया, 118% इजाफा। कहां जाएंगे हम लोग? कहां जाएंगे? यहाँ के आम जनता मस्टर्ड ऑयल से लेके कोकोनट ऑयल, ग्राउंड ऑयल, वनस्पति, तूर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, गरम दाल, हर जगह दाम में जिस तरह की इजाफा होते हैं, आम लोग भी कहने लगे हैं मोदी जी लौटा दे मेरे बीते बुरे दिन। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम गरीब होते जा रहे हैं, हमारे ऊपर बोझ क्यों डालते हैं? मोदी जी हिंदुस्तान दो हिस्से में बांटे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी इसलिए कहा था कि अमीर और गरीबी में फर्क बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप एक कार खरीदते हैं जिसका दाम होता है 15 करोड़, आप एक प्लेन खरीदते हैं जिसका दाम होता है 4,500 करोड़। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे बेकार नौजवान रास्ते में भटकते हुए आत्महत्या कर रहे हैं? हमारे भटकते नौजवान दिन रात रास्ते में भटकते हुए माँ बाप की गाली खाते हैं, आपको नहीं पता चलेगी। इसलिए मैं मोदी जी को याद में दिलाते हैं कि मोदी जी आप सत्ता पे है और सत्ता पे आने के बाद एक के बाद एक इंस्टीट्यूशन को आप तोड़ रहे हैं, ये सही नहीं होगा। अब पेगासस डाल रहे हैं हमारे खिलाफ, पेगासस की औजार की हैसियत से इस्तेमाल कर रहे हैं, और पेगासस की इस्तेमाल करते समय आपको ये नहीं लगता है कि हम किसके खिलाफ पेगासस इस्तेमाल करते हैं? हमारी हिंदुस्तान की आम जनता से टैक्स वसूला जाते हैं, उसी टैक्स को इस्तेमाल करते हुए हमारे खिलाफ ये खुफिया तंत्र के आप इस्तेमाल करते हैं। ये क्यों होते हैं? हमारे खिलाफ ये अन्याय क्यों होते हैं? ये हम जानकारी लेना चाहते हैं। एक के बाद एक, जैसे कि आप आने के बाद लोकपाल खत्म हो गए, व्हिसल ब्लोअर बिल खत्म हो गए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट खत्म हो गए, जुडिशियरी पे हस्तक्षेप ज्यादा होने लगे। एक के बाद एक देखते जाइए, आप खुद पता कर लीजिए जो मैं कहता है ये सही या नहीं, आप खुद पता कर लीजिए। इस तरीके के हमारे छवि धूमिल होते जा रहे हैं। आप सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट लाए थे, लेकिन ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट के चलते सारे हमारे नेबरिंग जो मुस्लिम कंट्रीज है, वहां की जो आम जनता आपके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। ये हमारे देश के लिए हानि है। डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए आप हमारे देश की सुरक्षा को आप खतरे में मत डाला करो, ये हमारा आपसे मांग है। बस अंतिम सर, मैं एक बयान पेश करता हूं कि यहां बड़ी बड़ी बात कहा जाता है, हिंदुस्तान की तरक्की होते हैं। इंडिया रिकॉर्डेड ए डेली एवरेज ऑफ 77 रेप्स ए डे in 2020, a negligible decline from 88 rapes per day in 2019. 90% of crimes registered under the Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO).
In 2020, there was 9.4% increase in crime against members of the scheduled caste and 9.3% increase in crimes against members of the scheduled tribe. Highest cases of atrocities recorded in BJP-led states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Bihar. India's status on the freedom in the world 2021 report downgraded from free to partly free. Hate crimes against religious minorities has spiked by 300% since the BJP assumed power in 2014. Incidents of cow vigilantism and related violence have increased sharply after PM Modi's successive government. Despite the COVID-19 lockdown in 2020, 16 such incidents were recorded, which resulted in 9 reported deaths. Modi ji, COVID के चलते जो एक जैसिया मिलना चाहिए था, SDRF में आप पैसा की मुहैया करा के सारे एक जैसिया पाने वालों को जल्द से जल्द ये पैसा मुहैया करे, ये निवेदन आपसे मैं करता हूँ। ये कम्युनल एंड रिलीजियस राइट, इसमें कितना इजाफा हुए हैं? 95.6%। कास्ट कॉन्फ्लिक्ट कितने बड़े हैं? 49.6%। आप देखिए मोदी जी अभी क्या हो रहे हैं हिंदुस्तान में। अब देखिए कि अंडर द मोदी जी गवर्नमेंट इंडिया स्लिप्ड 10 places in the World Justice Project's Rule of Law Index 2021 to 79 place out of 139 countries. It is now rated 3rd in South Asia after Nepal and Sri Lanka. On the order and security factor, India also slipped to 121st rank from 114 in 2020. In terms of civil justice, India ranked 114th compared to 78 in 2020. तो इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी आप इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम सब ये मान के चलते हैं कि ये देश हमारा सबका है, सुख हो या दुख हो, हर हालात में देश हमारा दिल का सहारा है। भारत प्यारा देश हमारा, ये सारे देश से प्यारा है और ये देश को हमें बचाना है, ये देश को हमें रक्षा करना है। नमस्कार।